Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let us begin with our session. So the title of the today's editorial is Transfers Unexplained on the transfer of High Court judges. Okay. So I have also translated this article in the Hindi. So if you are having any problem in understanding it in English, you can read the Hindi version of it and we will be understanding it in a better way. Okay, so what does the title suggests us? So the title is suggesting that the transfers which are made regarding the high court judges, those transfers are unexplained. Okay, फेर बदल के अस्पष्ट मायने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों का मामला. Okay, that means those transfers were unexplained. That means the no reason was given why these judges were transferred. Was the logic behind this transfer? Nothing has been explained. Only the transfer orders have been issued to the particular judges. Okay, so लेट्स सी व्हाट आवर आर्टिकल सेज. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सहमति के बिना फेरबदल की प्रणाली पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत. सो दिस इज़ द कमेंट फ्रॉम द ऑथर. ही सजेस्टिंग दैट कि उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी सहमति के बिना उनका ट्रांसफ़र करना, इसका ये जो सिस्टम है ना, इस पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए. सो द ऑथर इज सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट दैट यू शुड टेक दिस थिंग इन टू कंसिडरेशन. ठीक है, ओके. So first I will read this paragraph in English, then I will read it in Hindi, then I will explain you, okay? So let's read it. The common criticism that the functioning of the collegium system of judicial appointments is opaque and sometimes arbitrary seems to hold greater validity in the matter of transfer of judges from one high court to another. A recent round of transfers among the dozens that have affected in the last few years has brought the controversial issue to the fore again. The list included three judges from Telangana High Court and two each from Madras and Andhra Pradesh High Courts. Conspicuously absent was the name of Justice Nikhil S. Kurial, a Gujarat High Court judge whose proposed transfer was strongly opposed by the bar in the state. Okay, so this is the paragraph. Now I will be reading it in Hindi. Okay, न्यायिक नियुक्तियों के कलेजियम प्रणाली के बारे में यह आलोचना बेहद आम है कि उनका कामकाज अपारदर्शी है. अपारदर्शी इज़ ओपेक और कभी कभी मनमाना होता है. मनमाना इज़ आर्बिट्री. ओके, विभिन्न न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादले के मामले में, तबादला इज़ ट्रांसफ़र, तबादले के मामले में यह आलोचना कुछ ज़्यादा ही सही जान पड़ती है. पिछले कुछ सालों में किए गए दर्जनों तबादलों में हाल ही में ही किए गए कुछ तबादलों ने इस विवादास्पद मुद्दे को एक बार फिर उजागर कर दिया है. एक बार फिर उजागर करना इज़ ब्रिंगिंग दिस कंट्रोवर्शियल इशू टू द फॉर अगेन. ओके, हालिया तबादलों की सूची में तेलंगाना उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश और मद्रास एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के दो न्यायाधीशों के नाम शामिल थे. लेकिन इस सूची में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति निखिल एस करियल का नाम हैरत अंगेज तरीके से गायब था. कॉन्स्पेशियसली एब्सेंट मीन्स हैरत अंगेज, सरप्राइजिंगली. ओके, हैरत अंगेज तरीका इज कॉन्स्पेशियसली. ओके, न्यायमूर्ति करियल के प्रस्ताव तबादले का उस राज्य के बार ने कड़ा विरोध किया था. ओके, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस पैराग्राफ. द कॉमन क्रिटिसिज्म, दैट मीन्स द क्रिटिसिज्म मतलब जो विरोध मिला था, किस पे विरोध जताया गया? कॉलेजियम सिस्टम पे. द ग्रीन, द words which are marked with the green
the meaning of those words I have written here in this vocabulary segment. Okay, collegium means the Indian judicial collegium system where the judges appoint the judges to the nation's constitutional courts. Okay, that means the judges make the appointment of the other courts. Okay, the hope you have understood this, right? Suppose if there is this is probably done by the Supreme Court judges. Okay, so the judges of the Supreme Court appoints the judges of the various courts in the country. This is the collegium system. This much is enough to understand this article. Okay, let's not get deeper into that. Okay, so this collegium system and the appointment under this system is opaque. That means it is not transparent. Sometimes it is arbitrary. Arbitrary means based on random or personal whim rather than any reason or system. That means it is based on the personal preferences. Okay, not following any logical system. Okay, seems to hold greater validity in the matter of transfers of judges from one high court to another. Okay, a recent round of transfers among the dozens that have been effected in the few years. So that means इसका मतलब है कि दर्जनों जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है पिछले कुछ सालों में. तो ये जो चीज़ है ना, दिस हैज़ ब्रॉड, तो ये जो ट्रांसफ़र है ना, इससे क्या हुआ है, एक इससे कंट्रोवर्शियल इशू है ना, दिस हैज़ ब्रॉट द कंट्रोवर्शियल इशू टू द फोर अगेन. तो ये जो इशू है ना फिर से सामने आ गया है. ठीक है, वाई आई हैव mark this in the purple, it is a phrasal verb. To bring something to the fore means to bring forward, आगे की तरफ लाना, उजागर करना. ठीक है, तो ये इशू फिर से आ गया है लाइमलाइट में. ठीक है, सो डजन्स, वाई हियर वी हैव रिटन डजन, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लगा है डजन्स के साथ. अगर नंबर रहता था तो वी वुड बी राइटिंग ओनली डजन, लाइक 5 डजन, 6 डजन्स, 10 डजन, नॉट डजन्स. ठीक है, एस नहीं आएगा. अगर नंबर होता है तो उस पर एस नहीं आता है. ठीक है, अगर नंबर नहीं है तो एस आएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रामर भी ऑब्जर्व करना था. ठीक है, द लिस्ट इंक्लूडेड, तो जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था. 3 जजेस के नाम इंक्लूड थे, जिसमें से तेलंगाना हाई कोर्ट के 3 जजेस थे, 2 जजेस थे मद्रास हाई कोर्ट के, और आंध्र प्रदेश को हाई कोर्ट के 2 जजेस थे जो ट्रांसफ़र्स हुए उस लिस्ट में. ठीक है, कॉन्स्पेशियसली एब्सेंट मतलब सरप्राइजिंगली जस्टिस निखिल एस करियल का नाम एब्सेंट था, जो कि गुजरात हाई कोर्ट में जज हैं. ठीक है, हुज प्रपोज ट्रांसफ़र वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द बार इन द स्टेट. मतलब जब उनका नाम आया था कि हाँ इनका अब हम इनको भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ के जो जजेस थे गुजरात हाई कोर्ट के, उन्होंने इस ट्रांसफ़र का बहुत ही विरोध किया था. तो शायद इसीलिए उनका नाम हटा दिया गया उस लिस्ट से. ठीक है, जब उन्होंने विरोध किया तो उनका नाम हट गया. ठीक है, दो जो वहाँ पे ग्रुप ऑफ जजेस थे गुजरात हाई कोर्ट के, उन्होंने विरोध किया होगा कि भाई आप ऐसे मनमाने तरीक़ों से ट्रांसफ़र्स नहीं कर सकते हो, तो शायद प्रेशर में आके उनका नाम हटा दिया गया होगा. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. लॉयर्स टुक अप द इशू इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस करियल. तो जस्टिस करियल के सपोर्ट में उन लॉयर्स ने आवाज़ उठाई थी, एज वेल एज जस्टिस अभिषेक रेड्डी ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट. तो तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जस्टिस अभिषेक रेड्डी थे उनके सपोर्ट में भी बाकी के जो लॉयर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी. एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेट विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार फ्रॉम द बोथ स्टेट्स. तो जब ऐसे विरोध हुआ था तो तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जजेस थे, वहाँ के जो बार मतलब जो भी पूरे के पूरे जजेस थे उनसे वो मिले, और गुजरात हाई कोर्ट के जजेस से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले. तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़. ठीक है, अभी के तो प्रेजेंट वही हैं. ठीक है, तो मेट विथ, आपको यहाँ पे ग्रामर भी मुझे ऑब्जर्व करवाना था. मेट विथ हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब कोई एक बड़ी पर्सनालिटी किसी फॉर्मल या फिर ऑफिशियली वर्क
के दौरान किसी से मिलते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली आप अपने फ्रेंड के साथ मिल रहे हो, अपने भाई के साथ मिल रहे हो या फिर किसी और पर्सन के साथ मिल रहे हो, तो तभी जो वर्ड होता है यूज़ वो होता है मीट, ठीक है। तभी आपको यूज़ करना है मीट। अरे यार ये पेन ना आज बहुत ही इशू कर रहा है, ठीक है। तब आपको मीट लिखना है, ठीक है। आप इसके अंदर ना मीट समवन होता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। बट जब कोई ऑफिशियल होता है, कोई ऑफिशियल पर्सनालिटी होती है जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए मिलते हैं, तो तब आपको मेट विथ लिखना होता है, ठीक है। ये आपको ग्रामर भी ऑब्जर्व करना है। एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते आपको ये सभी ग्रामर के पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है। येट द ट्रांसफ़र ऑफ द जस्टिस करियल अलोन डिड नॉट मटीरियलाइज। तो ये जो ट्रांसफ़र था उनके, जब येट से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। तो किस चीज़ से हमें कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, देखो जो गुजरात हाई कोर्ट के जो भी सारे जजेस थे, वहाँ का जो बार था, उन्होंने विरोध किया जस्टिस करियल के सपोर्ट में। और तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस ने भी वहाँ के भी बार ने जस्टिस अभिषेक रेड्डी के सपोर्ट में उन्होंने विरोध किया कि इनका ट्रांसफ़र हट जाए। पर येट से क्या कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, विरोध तो हुआ पर क्या हुआ, जस्टिस करियल का जो ट्रांसफ़र था वो मटीरियलाइज नहीं हुआ। मटीरियलाइज मतलब बिकम एक्चुअल फैक्ट और हैपन, अमल में लाना, मतलब उनका वो ट्रांसफ़र था जो था जस्टिस करियल का, वो वहीं पे रुक गया। वाइल द ट्रांसफ़र ऑफ अदर जजेस वर नोटिफाइड। तो बाकी के सभी जो जजेस थे, तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जजेस थे, ऑल्दो उनके खिलाफ भी, मतलब उनके सपोर्ट में भी आवाज़ उठाई गई थी, पर उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। और जो हमने बताया था कि मद्रास हाई कोर्ट के जजेस थे, सो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। सिर्फ जो ये थे जस्टिस करियल, उनका ही ट्रांसफ़र रुक गया वहाँ पे विरोध के बाद, ठीक है। येट तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, ऑल्दो दोनों के सपोर्ट में हुआ, पर सिर्फ ट्रांसफ़र एक ही हाई कोर्ट के जज का रुक गया, बाकी सभी का हो गया, ठीक है। ऐसे वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। While the transfer of other judges were notified, if the reports that Gujarat High Court Chief Justice was unaware of the impending transfer of the Justice Karyal are correct, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और एक ग्रामर की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है इसके लिए आर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको पता नहीं था कि जस्टिस करियल, जो कि उन्हीं के कोर्ट में जो जज हैं, उनका ट्रांसफ़र होने वाला है। उनका कहना, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको नहीं पता था, चीफ जस्टिस को नहीं पता था कि जस्टिस करियल का ट्रांसफ़र होने वाला है। अगर ये बात सच है तो इट बोर्ड्स इल, बोर्ड शब्द का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ हमें फ्यूचर के बारे में दिखा रही हो कि ऐसी चीज़ होने वाली है, ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। तो अगर बोर्ड के सामने इल आता है तो मतलब कुछ ख़राब या फिर अनफेवरेबल चीज़ होने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, इट शोज़ और सजेस्ट दैट फ्यूचर डेवलपमेंट्स और इवेंट्स विल बी अनफेवरेबल और अनवेलकम, ठीक है। तो बोर्ड्स इल, अगर बोर्ड के सामने वेल लगता है, बोर्ड्स वेल, इसका मतलब है फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, ठीक है। मतलब या फिर वेलकमिंग सी चीज़ होने वाली है, फ्यूचर में इस चीज़ के होने के अच्छे आसार मिल रहे हैं, ठीक है। बोर्ड्स इल, अगर बोर्ड के सामने इल आता है तो मतलब कुछ ख़राब चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। तो अगर ये बात सच है कि गुजरात के ही चीफ जस्टिस को नहीं पता है कि उन्हीं के कोर्ट के कोई जज का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये फ्यूचर में हमें इस बात की अच्छे संकेत नहीं है कि, किस बात के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, जो वहाँ की लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी मतलब कन्फॉर्मिटी टू द लॉ, टू रूल्स, एबिलिटी टू बी डिफेंड विथ लॉजिक और जस्टिफिकेशन, मतलब लॉज से लॉज को कंफर्म करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना। किसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रांसफ़र प्रपोजल्स। सो जो भी ट्रांसफ़र और प्रपोजल्स हैं, वो सभी जो भी ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात संकेत अच्छे नहीं हैं इस मैटर के दौरान कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बोर्ड्स इल फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ ट्रांसफ़र प्रपोजल। तो जो भी ट्रांसफ़र प्रपोजल्स है
इसके रिगार्डिंग में ये बात सही नहीं हो रही है, ठीक है, कि वहाँ के चीफ जस्टिस को ही पता नहीं है कि उनके कोर्ट का कोई जज उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है। नो गुड मैसेज इज़ बीइंग सेंट इफ़ इट इज़ परसीव्ड दैट द कॉलेजियम heeds the demand made by one set of lawyers but ignores that of another group। तो heeds का मतलब होता है पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि गुजरात के जो जजेस थे, जो बार था वहाँ का, उन्होंने विरोध किया। तेलंगाना का हाई कोर्ट का जो बार था उन्होंने भी विरोध किया अभिषेक रेड्डी जी के सपोर्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर पढ़ा कि जस्टिस करियल का ट्रांसफ़र हो गया, बाकी सभी जजेस का हो गया। तो ऑथर हमें कह रहे हैं कि अगर जो वहाँ का जो कॉलेजियम सिस्टम है, मतलब जो अपॉइंट करते हैं जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, जो बाकी के कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र होता है, जब वो दूसरे जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरे जजेस को कोर्ट्स में अपॉइंट करते हैं, तो ये जो बात है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने जस्टिस करियल का ट्रांसफ़र हो गया, बाकी सभी जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि तो वो हीट्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लॉयर्स की बात सुन रहे हैं और दूसरे के बारे में वो दूसरे लॉयर्स की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा ना, अच्छा मैसेज सोसाइटी में नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग, ठीक है। सो ऑल्सो मैंने इस पैराग्राफ को हिंदी में भी रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ के आप उसे समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। Transfer of judges may be needed for the exchange of talent across the country and to prevent the emergence of local cliques in the judiciary। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि जजेस का ट्रांसफ़र होना चाहिए। किस लिए? एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, मतलब जो भी टैलेंटेड जजेस हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर हम उन जजेस को ऐसी जगहों पे ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी है या फिर सच्ची में जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, तो ठीक है, ये बात सही है। और हमें किस लिए ट्रांसफ़र करना चाहिए? ताकि जो लोकल क्लिक्स हैं जुडिशरी में वो ना बने। क्लिक्स का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रियली अलाउ अदर्स टू जॉइन देम, ठीक है। तो हमने कॉलेजियम सिस्टम में पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपॉइंट करते हैं, जो भी उनके जैसी भी मर्ज़ी होती है, जहाँ पे भी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मतलब अगर जो भी उनके ग्रुप में है, उनसे जो जिनका अच्छा कांटेक्ट है, तो वो उनको सपोज़ फेवर करते होंगे, बाकी के इनको फेवर नहीं करते होंगे। तो ऐसा जो ग्रुप्स बनते हैं उसे हमें रोकना है, ठीक है, वो ना बने। और क्या रीज़न है ट्रांसफ़र का? एक तो ये ग्रुप ना बने, और बाकी जहाँ पे उनकी सच में ज़रूरत है वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये दो बात है। सच्ची में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो इन दो बातों को फॉलो करना होगा, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। हाउएवर द पावर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज अ पॉसिबल थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र है ना, मतलब जो कि हमें किसी भी जज को दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने का ये पावर मिला है, ये है ना, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंसी के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, थ्रेट है। इवन अंडर द कॉलेजियम सिस्टम it seems difficult to dispel the impression that threat of transfer hangs over every judge's head। dispel मतलब ख़त्म करना। तो कॉलेजियम सिस्टम में भी इस बात को ख़त्म करना मुश्किल है कि हर एक जज के ऊपर ट्रांसफ़र की जो तलवार है ना वो लटकती ही रहती है। इस बात को डिस्पेल करना, ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब हर एक जज के दिमाग में यही चलता रहता है कि वो हमेशा इसी डर में रहते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो कि गवर्नमेंट को पसंद ना आया, तो वो हमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये भी पॉइंट आगे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो The memorandum of procedure is clear that a judge's consent is not necessary to effect a transfer। तो जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, मेमोरेंडम मतलब उनका डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये लिखा है कि कैसे जजेस का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो उसमें ये मेंशन है कि जजेस का कंसेंट मतलब उनकी रज़ामंदी लेना ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप कहोगे तो ही हम आपका ट्रांसफ़र करेंगे, आप नहीं कहोगे तो आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना है ट्रांसफ़र। द करेंट फॉर्म इज़ दैट ऑल ट्रांसफ़र, तो किस बेसिस पे हमें एक्चुअली में ट्रांसफ़र करना है? ऑट टू बी मतलब होना ही चाहिए, करना है, और किस तरीके से होना चाहिए?
और टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जनता के हित में हो वो ट्रांसफ़र तो ही ट्रांसफ़र करना चाहिए उन जज का। दैट इज़ फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक्सपीरियंस जो जजेस हैं, टैलेंटेड जजेस हैं, अगर उनके एक्सपीरियंस की कहीं और ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे उनको ज़रूर से ट्रांसफ़र करना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो सेज द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द जज, जो भी पर्सनल फैक्टर्स हैं जज के, इंक्लूडिंग, और किस बात को ध्यान में रखना है, पर्सनल फैक्टर्स को तो ध्यान में रखना है, और किस बात को ध्यान में रखना है, हिज प्रेफरेंस ऑफ प्लेसेस, मतलब वो कहाँ पे उनका प्रेफरेंस है कि उनको किस जगह पे, किस हाई कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो भी शुड इनवेरिएबली का मतलब है इन एवरी केस और ऑन एवरी ओकेजन, मतलब ऑलवेज, मतलब हमेशा उनके टू बी टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट मतलब उस बात को कंसिडर करना है, हमेशा उस बात को कंसिडर करना है। किन बातों को? जजेस के जो पर्सनल फैक्टर्स हैं और उनका जो प्रेफरेंस है कि कहाँ पे, किस प्लेस पे उनको ट्रांसफ़र करना है, वो जो कहते हैं उनके प्रेफरेंस को हमेशा मानना है, उस बात को कंसिडर करना है। ठीक है, नो वन नोज इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इन ईच केस। तो हर एक केस में इस रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होती है या नहीं पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने। ठीक है, देश भर में प्रतिभाओं के आदान प्रदान और न्यायपालिका में स्थानीय गुटों को उभरने से रोकने के लिहाज से न्यायाधीशों के तबादले ज़रूरी हैं, लेकिन तबादले की शक्ति को हमेशा न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत भी हर न्यायाधीश के सर पर तबादले की तलवार लटकते रहने की धारणा को दूर करना मुश्किल सा लगता है। ठीक है, दिस इज दिस लाइन, डिस्पेल द इम्प्रेशन द थ्रेट ऑफ ट्रांसफ़र हैंग ओवर द जजेस हेड। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में इस बात का साफ जिक्र है कि किसी तबादले के अमल के लिए संभावित न्यायाधीश की रजामंदी ज़रूरी नहीं है। वर्तमान कायदा यह है कि सभी तबादले जनहित में यानी पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए। इसमें यह पहलू भी शामिल है कि न्यायाधीश के व्यक्तिगत कारकों, जिसमें उनके स्थान की पसंद भी शामिल है, को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह कोई नहीं जानता कि हर एक मामले में इन शर्तों को पूरा किया जाता है या नहीं। ठीक है, वाई अ प्यूने जज। ठीक है, इसको हमें प्यूसने नहीं पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्यूने, S is the silent here. ठीक है, why a puny judge should be shifted to another state without being made a chief justice is seldom explained. ठीक है, puny का मतलब होता है puny judge is a dated term for an ordinary judge or judge of a lesser rank of a particular court. ठीक है, मतलब जो लोअर रैंक पे अब जज हैं उन जज को चीफ जस्टिस उस कोर्ट का बनाए बिना ही क्यों किसी और कोर्ट में हम उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये सेल्डम एक्सप्लेन्ड है। सेल्डम मतलब रेयरली, नॉट ऑफन, मतलब कभी कभार ही एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, मतलब उनके ट्रांसफ़र की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है कि उनको क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, यूजुअली इट सेट्स ऑफ द स्पेकुलेशन, मतलब सेट्स ऑफ मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट होना। ठीक है, स्पेकुलेशन मतलब डाउट होना, तो यूजुअली एक डाउट सा स्टार्ट हो जाता है लोगों के मन में, दैट द रीजंस आर आइदर एलिगेशंस अगेंस्ट द जज और द डिसकम्फिचुअर दैट द जुडिशियल ऑर्डर्स आर कॉजिंग दैट हिज जुडिशियल ऑर्डर्स कॉजिंग टू द गवर्नमेंट। मतलब तो लोगों को क्या लगता है इस बात का, ऐसे ऐसे डाउट्स आने लगते हैं कि अगर इसी पर्टिकुलर जज का दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो या फिर उन पे एलिगेशंस लगे होंगे, एलिगेशंस मतलब इल्ज़ाम लगे होंगे किसी भी चीज़ का, इसलिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, या तो उनके जो जुडिशियल ऑर्डर्स हैं ना, जो उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं, वो गवर्नमेंट को डिसकम्फिचुअर फील करवा रहे हैं, मतलब डिसकम्फर्ट फील करवा रहे हैं उनसे, उनके ऑर्डर से गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है,
ऐसे थॉट्स आ जाते हैं लोगों के मन में, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ द एक्चुअल रीज़न मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। हर बार उनके जो जजेस का ट्रांसफ़र है उसका रीज़न हर बार डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। हाउएवर इट हार्डली नीड्स टू बी स्ट्रेस दैट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी एज अ पिनिटिव स्टेप। पिनिटिव मतलब पनिशमेंट देने वाला स्टेप। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हमें उनका ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को तकलीफ़ हो रही है, या फिर कोई भी रीज़न है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र के रिलेटेड, तो उनको एज अ पनिशमेंट के तौर पे हमें उनका ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होता है ट्रांसफ़र तो बेशक आप कर दो, बाकी ऐसे ही उनको पनिशमेंट देना है। अच्छा आओ, आपने ऐसा ऑर्डर किया था ना हमारे से पास, ठीक है अब आ जाओ, आपको हम ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। द टाइम मे हैव कम फॉर अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो ऑथर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हमें इस सिस्टम का जो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस हैं, तो जैसे जिस सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र होता है दूसरे कोर्ट्स में, इस पूरे सिस्टम का हमें रिव्यू करना है। तो इस चीज़ का समय अब आ गया है, ठीक है। सो इस बात को शायद ही कभी स्पष्ट किया गया है कि एक अवर न्यायाधीश, अवर इज प्यूने जज, ठीक है, अवर न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाए बिना उनका तबादला किसी दूसरे राज्य में क्यों किया जाना चाहिए। आमतौर पर कयास यह लगाया जाता है कि इसके पीछे की वजह या तो न्यायाधीश के खिलाफ आरोप है या फिर उनके न्यायिक फैसले सरकार को परेशान कर रहे हैं। असली वजह का खुलासा हमेशा संभव नहीं है। हालांकि इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि तबादले को एक दंडात्मक कदम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शायद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले के प्रावधानों की पूरी समीक्षा करने का वक्त अब आ गया है, ठीक है। तो ऑथर हमें बस यही सजेस्ट, पहले तो उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि ये सब चीज़ें हुई हैं, लास्ट में सजेशन दिया है ऑथर ने कि अब समय आ गया है कि इस सिस्टम को रिव्यू कीजिए और जो भी लूप होल्स हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं, उनको मिटा दीजिए और सिस्टम को करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द आर्टिकल। अब हम पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग अब हम थोड़ा ग्रामर भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज हम अपने एडिटोरियल में, मैंने आपको अब तक सभी ग्रामर का जो भी पार्ट था एडिटोरियल में वो आपको समझाया। बिकॉज एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ही यही है कि हमारे जनरल अवेयरनेस भी इंक्रीज़ हो, ग्रामर जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो भी सब कुछ हमारे ठीक तरीके से हम उसे लर्न कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं वोकैबुलरी टेस्ट। सो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करने वक्त बता दिया था। तो अब आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको ये वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो। ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, आर्बिट्री मनमाने तरीके से, मटीरियलाइज मतलब उस चीज़ का होना एक्चुअली में, लेजिटिमेसी मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, उनका कन्फर्मिटी होना, ठीक है। हीड्स मतलब अटेंशन देना किसी पे, क्लिक्स मतलब एक ग्रुप जो कि दूसरे किसी लोगों को अपने में शामिल नहीं करता है। इनवेरिएबली मतलब हमेशा। बोर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का कुछ संकेत देना। इल मतलब कुछ फ्यूचर के ख़राब संकेत देना। अनफेवरेबल चीज़ होना, अनवेलकमिंग चीज़ होना। और बोर्ड वेल का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था, अगर बोर्ड के सामने वेल आता है तो फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, ठीक है। सेल्डम मतलब रेयरली, नॉट वेरी ऑफन, ठीक है। सो होप आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग अब अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने एसे के तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको इस सेशन से कितना सब कुछ मिल रहा है। ग्रामर के एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं, वोकैबुलरी कवर हो रही है, अब तो ऐसे भी कवर हो रहा है। अब मैं आपको हर सेशन में एक ऐसे टॉपिक देता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, बैंकिंग का एग्ज़ाम अगर आप मेंस सेक्शन तक जाते हो, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देना होता है, तो मेंस सेक्शन में आपको एक ऐसे भी लिखना होता है, ठीक है। कि एक आपको टॉपिक दिया जाता है, उस पर ऐसे भी लिखना होता है। तो अब मैं आपको ऐसे भी देता हूँ, आपको हर रोज़ सेशन में एक टॉपिक भी दिया जाता है, ठीक है। राइट एन एसे ऑन द इशू ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। तो आपको इस टॉपिक पे ऐसे लिखना है। सो
while writing this essay you can take the points from the today's article which we have learned. आप इस आर्टिकल की हेल्प लेके आप इस पे ऐसे लिख सकते हो. तो आपको 200 वर्ड्स में लिखना है ये ऐसे, तो प्लस और माइनस 10 चलेगा, मतलब 190 या फिर 210 वर्ड्स में आप इस ऐसे को ले सकते हो. बिकॉज देखा गया है कि 200 210 वर्ड्स के आसपास ही आपको लिमिट दी जाती है, उसी लिमिट के अंदर आपको ऐसे को आपको कंप्लीट करना होता है. ठीक है. So hope you have liked this session. If you have liked it, do share it with your friends. ठीक है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो भी बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए, रेलवेज़ के लिए. इनफैक्ट यूपीएससी वालों को भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है. And if there is any feedback, do let me know in the comment section. I will work upon it. ठीक है. So now I will be winding up the session. Thank you very much for being with me. ठीक है. Until we meet next time, आप हमारे बाकी के सेशंस को देख सकते हो. ठीक है. So bye bye everyone and take care.